My name is Neha Banerjee. I have secured All India Rank 20 in UPSC Civil Service Exam 2019. आज मैं आपके साथ अपनी पूरी 1 साल और 1.5 साल की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीटेक है, आई हैव कंप्लीटेड दैट इन 2018 फ्रॉम IIT खड़गपुर, and then I went on to work with Adobe Systems in Noida throughout the year from July 2018 to January 2020. So मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी प्रेपरेशन के दौरान मैं जॉब के साथ ही मैंने प्रिपेयर किया और मैंने इंटरव्यू से 10-15 दिन पहले ही जॉब से रिजाइन दिया। वो भी उसके अलग रीजन थे, इसलिए नहीं क्योंकि मैं श्योर थी कि मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा, ऐसे कुछ कारण नहीं था उसके पीछे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे मैंने अपनी पूरी 1-1.5 साल की तैयारी सेट की और कैसे कैसे मैंने अपनी प्लान को स्ट्रैटेजाइज किया। So let's come to the phase one. Like when now when I look back to my preparation, मैं अपनी पूरी preparation phases को कुछ parts को कुछ phases में divide कर देती हूँ ताकि you get a structured idea of your entire journey. So let's come to phase one. So in this now I'm speaking from the perspective of a person who is absolutely a novice in this field. मतलब कोई ऐसे इंसान जैसे मैं एक engineering background से थी, तो मेरे लिए सब कुछ काफी नया था। तो उस हिसाब से मतलब ये जो फेज वन है ये बेसिकली एग्जाम को जानने का अच्छा फेज होता है। इन दिस फेज जैसे मैंने भी मतलब अपने खुद का जो मोटिवेशन है कि क्यों ये एग्जाम करना है, तो मेरे लिए ये फेज लगभग स्टार्ट हुआ था फरवरी 2018 के आसपास। उस टाइम पे मुझे ये एग्जैक्टली पता तो नहीं था कि मुझे यही करना है, तो मैं एक्चुअली एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे क्यों ये करना है। तो इसका भी एक प्रोसीडियर होता है। फॉर एग्जाम्पल I went to the library, I picked up the newspaper, and then I started reading it. And as more I read, the more I enjoyed them. जैसे मुझे लगा कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो आसपास पूरी दुनिया भर और इंडिया के मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है उसकी एक अच्छी आइडिया हमें मिलती है। तो even if I do not qualify UPSC, at least I will be a better person. At least I will be a more knowledgeable person. तो वो हर एक मैं किसी भी फील्ड में जब वो एक एसेट तो है ही ना अपने आसपास की चीजों को जानने। तो उसी मानसिकता के साथ मैंने अपनी न्यूज़पेपर की पढ़ाई धीरे से स्टार्ट की। In this phase, you did not make any notes. I also did not make any note in this phase one. I just got hold of the exam. I took a look into the syllabus. कि syllabus क्या है, क्या-क्या चीजें हैं. And gradually I found out that yes, probably this area is for me because I started enjoying the syllabus components, history, geography, polity, इतना सब कुछ पढ़ना होता है. And आपको हर एक चीज के बारे में मतलब जानना होता है. तो this thing intrinsically appeals to me very much. Then I started knowing myself, what I want out of my life, and gradually I felt that this exam is something which I can relate to very highly. Like before this also I was exploring other areas of expertise like an MBA program or maybe a PhD outside or maybe some research oriented work or this. Those were also very good work and my friends were doing them with a lot of motivation. But when I used to do them, I lacked that dedication and that motivation. But for UPSC Civil Services, I felt that yes, this is probably my area and I had that kind of commitment. I don't know from where, but that came. And probably this idea that like anybody can clear this exam only by hard work, by dedication, by planning and strategizing. This thing appeals to me very highly. Like you don't have to run after people, you don't have to give money here and there and मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको अपनी कड़ी मेहनत से इस चीज को हासिल प्राप्त करनी होती है। तो ये जो चीज है ये वाली फैक्टर मुझे बहुत ही आज भी मुझे बहुत अपील करती है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, सिलेबस को जानना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे टॉपर्स के टॉक्स देखे। इसमें भी मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जैसे आप आज मुझको सुन रहे हैं, कल आप किसी और को सुनेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ना रखें। डोंट गेट कंफ्यूज बाय लिसनिंग टू मल्टीपल पर्सन्स. Just get inspired by their journey. For example, when I used to watch the videos, I used to find out many inspiring videos of people. For example, somebody had cleared it with in 5th attempt, and then but he kept on till that. So those kind of journeys inspired me highly, and it still motivates me today. So you also take in the positive factors, keep an open mind, a positive mind, and then I used to watch. I remember on Unacademy that time, Roman Saini sir used to give all those motivational videos like. Whether you want to be a civil servant or not, how do you know that? So those things appeal to me. Finally, in this phase, I also made out that okay, gradually I decided that this is my area. So you see that the decision was not a one-day job that suddenly on this day I decided that I will be a civil servant. It was not that. It was a very gradual process, and gradually I knew that okay, this is my area.
I decided on some important questions. For example, let's say whether I should take coaching or not. This is a very pertinent question which people say. So at least for me, there was a very clear cut answer to this, that I would not go with any traditional coaching, classroom based coaching center. The reason behind this is that मतलब बचपन से ही मुझे खुद से पढ़ने में ही अच्छा कंफर्टेबल लगता है. मतलब मैं कंफर्टेबली फील नहीं करती अगर मैं कोई और मुझे पढ़ाए या फिर कोई कोचिंग सेंटर, मतलब 4-5 घंटे का क्लासेस हो, ये चीज मुझे बचपन से ही कंफर्टेबल नहीं लगता. तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ बड़ा कुछ कर दिया और किसी को कोचिंग नहीं लेना चाहिए, ये सब नहीं है. अगर आपका पढ़ने का ढंग ऐसा है कि आपको कोचिंग देके कुछ पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा तो आप जरूर जाए, ठीक है. और अगर आपको लगे कि आपको कोचिंग से कुछ फायदा नहीं होगा तो आप ना जाए. लेकिन ये पूरी पर्सनल डिसीजन है, आपकी पढ़ने का ढंग जो है, जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर मैटर करता है, नॉट एनी अदर रीजन. सेकेंडली, जैसे और एक क्वेश्चन आती है कि शुड आई लीव माई जॉब और नॉट. ये भी मैंने इसी फेज में डिसाइड कर लिया था कि नहीं, जॉब तो नहीं छोड़ना है. आई ऑलरेडी हैड गॉट अ पीपीओ लास्ट ईयर, आई मीन इन 2017. तो मैंने जॉब नहीं छोड़ने की डिसीजन ना इसलिए लिया क्योंकि एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली बात आती है. मुझे लगा कि अगर मैं एक साथ सब कुछ छोड़ के प्रिपेयर करूँ तो बहुत सारे इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे जो मेरे लिए इमोशनली लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए मैंने वो नहीं किया. और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब करते हैं, जॉब के साथ ही करेंगे और जितना हो पाए मैं अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजाइज करूंगी. तो नाउ लेट्स कम टू फेज 2 ऑफ दिस प्रिपरेशन. फेज 2 मेरा प्रिपरेशन का स्टार्ट हुआ फ्रॉम May 2018 और इट वेंट अप टू September 2018. So this phase was in between. In July I also had my joining for job. अब ये जो फेज है इसको मैं बोलती हूँ एक फाउंडेशनल, एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसा फेज. तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इसमें था तो सब कुछ नया था, तो मुझे, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, तो सब कुछ एवरीथिंग वाज न्यू एंड आई हैड टू लर्न देम फ्रॉम स्क्रैच. ओनली गाइडेंस, आई मीन द ओनली बैकग्राउंड दैट आई हैड वाज दैट कुछ कुछ जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे चीजें हम क्लास 10 तक थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, बस उतना ही याद था, उससे पहले कुछ नहीं था. तो इसमें मैंने अपनी जो मेन फिलोसफी है कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड at this point of time, at this foundational building block, and don't think too much of the exam, like whether you are going to give prelims or mains and answer writing. I did not think too much of this. I just went into the subjects. मतलब अगर हम सब्जेक्ट को ही पहले से ना जाने कि ये पॉलिटी है क्या, ये ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स है क्या, तो मतलब हम ये डिसाइड क्या करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, आंसर राइटिंग क्या करेंगे. पहले तो सब्जेक्ट को अच्छे से जानिए. मतलब उतना करने के बाद ही हम ना बता सकते हैं कि चलो आंसर में ये पॉइंट देंगे कि ये डायग्राम की ये नाम देंगे. तो एक सीक्वेंस होता है स्टडिंग का. उस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लॉजिकली, आपको आपका जो रिटेंशन है वो लॉजिकली आपके दिमाग में बैठेगा. तो इसमें मैं, वैसे तो सबका ही ऑलमोस्ट सिमिलर सोर्सेज होता है, लेकिन फिर भी मैं अपना अपना सोर्सेज भी एक बार बता देती हूँ. कुछ ज्यादा कुछ न्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का तरीका शायद न्यू हो सकता है. वैसे मैंने अपनी एक ब्लॉग भी लिखी है, उसमें भी ये सब कुछ एकदम अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं. तो चलिए आते हैं अभी हम आपकी जीएस की जो प्रिपरेशन थी, मतलब इस ये जो फेज था May to September 2018 फेज 2, इसमें पैरेलली तीन चीजों, आई मीन आई वाज गोइंग थ्रू थ्री थिंग्स पैरेलली. वन इज द जीएस ब्लॉक, अनदर वन इज करंट अफेयर्स और अनदर वन इज ऑप्शनल. तो मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ. तो जीएस में सबसे पहले मैं आती हूँ ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में. तो ज्योग्राफी में जैसे पहले मैंने क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी थी, उसके साथ कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मतलब एक जैसा वो एक मोनोटनी आ जाती है. तो उसमें मैंने अमित सेनगुप्ता सर की यूट्यूब वीडियोस देखे, क्योंकि उन्होंने काफी इलस्ट्रेटिव वे में उनको एक्सप्लेन किया है. अच्छा, अभी ऐसा है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही ढंग कैसा है. तो मैं ऐसे करती थी कि जब भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई 150 पेज का एनसीईआरटी है, तो उसका मैं एकदम शॉर्ट और कंसाइज नोट्स बना के उसको 10-15 पेजेस में लिख देती थी, मतलब अपनी कॉपी में रिटन नोट्स. ओके, आई नेवर यूज्ड टू गो विद दैट हाइलाइटिंग पीडीएफ स्ट्रेटजी. और क्या होता था कि एक बार मैंने नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद मैं जब भी रिवाइज करती थी, आई नेवर यूज्ड टू ओपन द एनसीईआरटी पीडीएफ और द बुक अगेन, आई ओनली यूज्ड टू रिवाइज फ्रॉम माय नोट्स. तो एक बार 11th 12th एनसीईआरटी कर लिया और उसके साथ स्कूल एटलस जो भी जितना भी देखना होता था देख लिया. फिर उसके बाद अगर हम आते हैं एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट में भी ये शंकर आईएएस की बुक आती है, लेकिन वो सब बोलते थे, मैंने भी खरीदी, लेकिन पता नहीं मुझे उस बुक का सीक्वेंस बहुत हैप्पीजर्ड लगा. मतलब लगा कि एक चैप्टर ऐसे दिया है, फिर दूसरे चैप्टर नेक्स्ट मोमेंट में, मतलब कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं मिला. तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे अन अकेडमी में श्रेया शर्मा मैम के एक फ्री कोर्स होते थे, मतलब वो उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे नहीं था, तो एक फ्री कोर्स था श्रेया शर्मा मैम की, तो उन्होंने काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखा था, तो मैंने उनकी कोर्स की हेल्प ली. और
फिर मैंने अपनी खुद के नोट्स बनाए, तो फिर ऐसा लगा कि जो शंकराचार्य बुक में इतने सारे पता नहीं कितने, मतलब 50 से ऊपर शायद चैप्टर्स होंगे, लेकिन वो मैंने कंसोलिडेट करके एकदम छोटे छोटे नोट्स बना लिए ब्लॉक्स में। तो यही आपका मेन चीज है कि वैसे तो सिलेबस इतना लार्ज है, लोग बोलते हैं कि the syllabus is so vast, but what is your duty? Your duty is to make it shorter, to consolidate it. That you can do by effective note making. I mean, when you are making, तो इससे क्या होता है ना, जब आप खुद शॉर्ट करके चीजों को लिखते हो, इससे आपका एज अ साइडलाइन आपका एक लिखने का हैबिट भी डेवलप हो जाती है फॉर मेन्स ऑल्सो। और आप जैसे, हम मेन्स में जैसे बोलते हैं कि टेबल्स में या फिर चार्ट्स में साइंटिफिकली लिखो, तो वो लिखने का तरीका भी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, राइट। फिर उसके बाद अगर हम आए मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबको पता है कि स्पेक्ट्रम का जो राजीव वही सर का जो बुक आता है वही है, लेकिन वो भी मुझे काफी, मतलब थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते नींद आने वाली थोड़ी सी तेज आती है उसकी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मृणाल सर के यूट्यूब चैनल में श्री प्रतीक नायक सर की एक कोर्स था उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैंने उस कोर्स से बहुत मुझे मदद मिली, और सर एक्चुअली इतनी एनर्जेटिकली समझाते थे कि, और उनका जो कोर्स है वो एकदम इट गोज पैरेलल टू स्पेक्ट्रम। तो मैंने उस कोर्स का सहारा लिया, और इसमें मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया बिकॉज स्पेक्ट्रम तो पूरी पढ़नी होती है, but to understand spectrum I got a lot of help from Pratik Naik sir's course for modern history. For ancient medieval history and art and culture, I always used to look at them as one block. So my base book was the Tamil Nadu board book. Tamil Nadu board book because एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पढ़े एंशियंट मिडिएवल आर्ट कल्चर के लिए, तो न्यू एनसीईआरटी में ना सीक्वेंशियली दिया नहीं है, मतलब आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि ये राष्ट्रकूटास पहले आए थे या पल्लवास पहले आए थे। तो इसको सीक्वेंशियली समझने के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ आप फिर एक बार वो बुक आपने पढ़ लिया और अपनी थोड़ी बहुत नोट्स बना ली, और उसके बाद यू कैन रेफर टू द क्लास 6 एंड द क्लास 6, 7, 8 एंड 12 पार्ट 1 पार्ट 2 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी। अब बात यह है कि जो न्यू एनसीईआरटीज है उसमें से आजकल कुछ कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है, और वो काफी एक स्टोरी की तरह काफी कलरफुल वे में प्रेजेंटेड है, तो आप उसको एंजॉय करें। इसके साथ मिडिएवल हिस्ट्री में मैंने अभिषेक श्रीवास्तव सर की एक अनअकैडमी कोर्स होती थी, मतलब वो भी यूट्यूब में, तो यूट्यूब चैनल में मैंने अभिषेक श्रीवास्तव सर की कोर्स देखी। वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, क्योंकि वो एकदम टाइमलाइन, एक स्ट्रिक्ट टाइम, क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री पढ़े, आप ना एक ऐसा कोई कोर्स या फिर कोई बुक चुनिए जहाँ पे आपका टाइमलाइन अच्छे से एक्सप्लेन हो, ताकि आपको समझने में और आपको रिटेन करने में आसानी लगे उसमें। तो इसमें भी मैंने अपना खुद का कंसोलिडेटेड नोट्स बनाया, क्योंकि इतने सोर्सेस थे, तमिलनाडु अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस, मतलब यूट्यूब क्लासेस, फिर उसके बाद क्लास 11 की जो फाइन आर्ट्स बुक आती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, तो उसको भी आप एंशियंट मिडिएवल के साथ पैरेलली पढ़ सकते हो, और एक जगह पे अपना खुद का नोट्स। अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे प्रीलिम्स में तो नहीं है, तो इसमें आपको एकदम छोटी जो डिटेलिंग होती है उस डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उसमें एक बर्ड्स आई व्यू रखना, और इसमें भी मैंने मृणाल सर की वेबसाइट से ये एक अर्जुन देव जैसी एक ओल्ड एनसीईआरटी होती है, तो मृणाल सर ने अपनी वेबसाइट में उसी की एक समरी लिख के सर ने ही हैज गिवन अ गुड समरी ऑफ दैट in a word format, in a text format. So I went through that those texts of Mrinal sir's from Mrinal sir's website, एंड अलॉन्ग विद प्रतीक नायक सर का भी एक कोर्स आती है यूट्यूब में, इस टाइम पे यूट्यूब में मृणाल सर के चैनल में, तो उनसे मैंने इन दोनों सोर्सेस से वर्ल्ड हिस्ट्री का देखी। फिर अगर हम बात करें पॉलिटी में, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, सबको ही पता है कि लक्ष्मीकांत ही एक बुक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कि अगर सभी एक बुक को फॉलो करें तो फिर मार्क्स में डिफरेंस कैसे आती है, तो इसमें ऐसा होता है कि यू हैव टू स्टडी द बुक स्ट्रेटेजिकली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टडी let's say chapters on president, governor, union territories. These chapters you can study together. Then chapters on Supreme Court, High Court, subsidiary courts. These chapters you can study together. Why? Because this will help you to understand them in a better way. And more, another important thing is that while studying Lakshmikant, लक्ष्मीकांत की बुक के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स एमसीक्यू लेवल के, आप उनको जरूर रेफर करना। और ये भी एक बात है कि ये लक्ष्मीकांत ना एक बार में किसी को पढ़ के समझ नहीं आता, किसी को पढ़ के होता नहीं है, तो यू हैव टू डू इट राउंड बाय राउंड। जैसे मेरा ये मई टू सितंबर ये 4-5 महीने का जो था, उसमें मैंने राउंड बाय राउंड आइटरेटिवली इसको कवर किया। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर रिवाइज किया, नहीं। ऐसा हुआ कि मैंने सब कुछ पहले एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद फिर से उसी को रिविजिट किया, और ये करते करते एक साइनेप्टिक कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसे टाइप के आप पॉलिटी कवर कर सकते हो। अच्छा, इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी में तो पहले मैंने क्या किया, पहले एकदम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही आसान बुक है क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमी। उसमें आपको पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्ट्री मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हो।
फिर क्लास 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक बुक है वहां से आप डेफिनेशंस को उठा सकते हो, मैंने भी जैसे वहां से मैंने डेफिनेशंस को उठाया। फिर उसके बाद 9th 10th की इकोनॉमी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इन 9th इकोनॉमी यू विल फाइंड एन एक्स्ट्रा point given about the National Food Security Act. So whatever notes you make from these, again here also I follow the same strategy, that consolidating a 150-page NCERT book into 10-20 pages and making my own notes, right? And you know, I would also advise that you can leave some gaps in your notes so that you can append extra information as in when you get it. Now another important is that बाकी जैसे बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस देख के मुझे ये पता चला कि इकोनॉमी का एक बुक है जैसे रमेश सिंह संजीव वर्मा, तो और फिर कुछ एक नोट्स भी आती है शायद उसका, तो मैंने वो परचेज तो किया लेकिन मैं वो पढ़ नहीं पाई, मुझे वो बहुत ही ओवरवेलमिंग लगा। तो फिर मैंने एक बुक को रेफर किया था जिसका नाम था शंकर गणेश। तो शंकर गणेश इज अ वेरी छोटा सा बुक, बहुत ही पतला सा एक बुक है। उसमें एक्चुअली आपको सारे ही टॉपिक्स का मतलब जैसे इकोनॉमी के कुछ पिलर्स होते हैं ना, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, वो हो गया, तो जीडीपी हो गया, तो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ही पतला सा बुक है, वो मिल जाता है शंकर गणेश। और फिर उसके बाद मुनार सर, मेरे हिसाब से मुनार सर की कोर्सेज में जो डेप्थ है वो किसी बुक में मतलब मुझे तो उस टाइम पे नहीं मिला था। और बस मैंने डेडिकेटेडली मुनार सर के लेक्चर्स को फॉलो किया। अब वो कोई 1-2 महीने का चीज तो है नहीं कि 1-2 महीने फॉलो करके आपका हो जाएगा। वो मुनार सर के लेक्चर्स भी लक्ष्मीकांत जैसा है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिटेन करना पड़ता है। और सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, जैसे उनके लेक्चर्स में आप पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर का भी आपको आइडिया मिल जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स का भी आइडिया मिल जाएगा, एनर्जी इकोसिस्टम का भी आइडिया मिल जाएगा, साइंस एंड टेक भी थोड़ा सा कवर होता है इन कोर्सेज। अच्छा, तो ये गया अपना इकोनॉमी। फिर हम आते हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में भी जैसे इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन जैसे कुछ कुछ स्मार्ट वेज है। फॉर एग्जांपल अगर इसरो इसरो के मिशन के बारे में हर साल प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ आता है, तो आप एक अलग सा विकिपीडिया से सर्च करके एक लिस्ट आपके पास रख सकते हो। और बाकी जैसे कुछ बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनके लिए अन अकेडमी में यूट्यूब ऐप में भी फ्री कोर्सेज कुछ कुछ होते थे उस टाइम पे, तो वो मैंने रेफर किया था। और बाकी जैसे मैंने बाकी तो ये आपका जो आप विजन आई इसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिसमें मैं आऊंगी, वो उससे कवर हो जाता है। फिर अगर हम देखें कि बाकी जो मिसलेनियस सी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकती है इस फेज में, तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी एक वेब सीरीज की, वो जो एबीपी की जो प्रधानमंत्री वेब सीरीज आती है यूट्यूब में। मुझे लगता है वो मुझे बहुत हेल्प किया फॉर बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। लाइक यूजुअली पीपल सजेस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा जैसी बुक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसी कोई बुक मतलब मैंने वो खरीद के तो रखा था, अभी तक वो पढ़ा है मैंने, आई डिड नॉट टच दैट बुक, क्योंकि ऐसे नॉवेल टाइप के बुक को हम रिवाइज कैसे करेंगे अगर पढ़ भी लिया तो। लेकिन अगर हम वेब सीरीज देखें तो पता नहीं वो एक मतलब आई एम यूजुअली अ पर्सन हु लव्स वाचिंग सिनेमा एंड वेब सीरीज एंड ऑल, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री। उसके साथ कुछ कुछ बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी है। फॉर एग्जांपल एक एनसीईआरटी आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, that is an NCERT of class 12 I think. That is a very good NCERT. It will give you the background of all, मतलब जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की करंट अफेयर से पढ़ोगे तो आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम दैट एनसीईआरटी। फिर कुछ और सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज होते हैं, सोशियोलॉजी के सारे एनसीईआरटीज नहीं, कुछ ऐसे एनसीईआरटीज जिसमें कुछ डेमोग्राफी आपके कुछ, जैसे एक एनसीईआरटी में मुझे पता जैसे लिखा था कि कम्युनलिज्म का डेफिनेशन, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन, तो वैसे टाइप की एकदम एनसीईआरटीज की खूबियां यही है कि बहुत ही इजी वे में, वो एक तो बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही ल्यूसिड वे में वो लिखा है, ताकि you find them very easy to retain, and secondly you read page after page and you not even feel that you have read so much। और आप उसको अगर कॉन्सेंट्रेट कर लो तो आपका तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसमें तो एनसीईआरटीज आप जरूर कीजिए ऐसे करके, कुछ सोशियोलॉजी, कुछ पॉलिटी के, जैसे 6 to 10 कुछ पॉलिटी के एनसीईआरटीज है, एक पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी आती है, उसमें भी ना जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मुझे याद है एक एग्जांपल था कुछ 6 या 10 एनसीईआरटी में कि कुछ बोलीविया या फिर ब्राजील में ऐसे एक देश में उन्होंने एक बार वाटर सप्लाई को प्राइवेटाइज कर दिया, तो क्या ऐसे टाइप ऑफ एसेंशियल सर्विस को प्राइवेटाइज करना चाहिए? तो ये चीज आपको कहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, और ऐसे एग्जांपल को आप अगर ऐसे में या फिर किसी जीएस आंसर में कोट करिए तो अच्छा होगा। फिर एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे पावर हेजेमनी, कि फिर ऐसे टाइप की टर्म्स आप जरूर नोट कर लीजिए, दैट विल फॉर्म द बेस। So this was the one strand of phase two, which is basically the NCRTs and the foundational blocks, right? Next, let's come to what I did for my optional. So I was parallelly carrying on with my optional, that was electrical engineering. अब मेरा optional थोड़ा बहुत covered था because I was a student of electrical engineering, and thankfully when I was doing BTech I did not know about the civil services.
तो उस टाइम पे मैं अपनी जो क्लासेस होती थी उसमें काफी कंसंट्रेट करती थी, और मेरा प्लान भी यही था कि मैं एकेडमिकली भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ही कुछ करूँ। तो इसीलिए ये एक एडेड, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज आई वुड से। बट हाँ, यूपीएससी के लिए अलग से भी पढ़ना होता है। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे ऑप्शनल के लिए, मैंने सिर्फ अपना बस मतलब आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, जैसे 14 टॉपिक्स है ऑप्शनल में। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द इजीएस्ट टॉपिक इन द ऑप्शनल, एंड वॉट एवर सोर्सेज आई हैड, आई मेड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो डायरेक्टली आई स्टार्टेड विद द प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी करूंगी फिर उसके बाद सॉल्व करूंगी, ऐसा नहीं। मतलब डायरेक्टली आई स्टार्टेड ओनली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दिस। ओके, अभी हम थर्ड स्टैंड की बात करते हैं इसमें, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स में ऐसा था कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द मंथ फ्रॉम February to March April I went through the Hindu newspaper and some magazines, not from an academic point of view but just to question myself whether I am interested in this field or not. तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको अगर ये लगे आपको यूपीएससी करना है कि नहीं, आप समझ लेना कि अगर आपका करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो मतलब यू मे बी इन द राइट फील्ड, राइट। तो अभी इस पेज में मैंने क्या किया था, आई वांटेड टू मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड। आई मीन पहले तो मैं बस न्यूज़पेपर पढ़ती थी और रख देती थी, नो नोट्स नथिंग। बट फिर मुझे लगा कि अगर नोट्स नहीं बनाऊंगी तो मैं इंटरकनेक्ट कैसे करूंगी चीजों से। So then I went through the folder strategy. This is also written in my blog how I had made folders in a detailed way. But फिर भी मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। तो ऐसे किया था कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए अपने वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ऐसे 3-4 फोल्डर्स बनाए थे, जीएस 1 2 3 और 4, और उनके अंदर सब सेक्शंस के जैसे। और फिर मैं हर दिन जो आर्टिकल्स आते थे, जैसे मैंने हिंदू पढ़ा उसके साथ मैंने कुछ वेबसाइट्स को रेफर करती थी, जैसे आईएएस बाबा का डेली करंट अफेयर इनसाइट्स। तो ऐसे बस इन्हीं दो वेबसाइट्स को फॉलो किया, और न्यूज़पेपर ही मेन था। कभी कभी वेबसाइट नहीं भी हो पाता था, ऐसा नहीं कि रेगुलरली करती थी, कभी कभी। लेकिन उस वेबसाइट को इनिशियली फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि न्यूज़पेपर से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यू डोंट नो दैट व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव इन द न्यूज़पेपर। So those current affairs, those websites will guide you in that. Those three initiatives like IS Baba's Daily Current Affair, Insights Daily Current Affair, or any website which you are comfortable with, right? Those will guide you in what is there, what you should take from the newspaper and what not. So whatever important materials I found, the most important step that I took here was to interlink, the topics among themselves. कि for example, अगर आज ऐसा कोई editorial आता है जिसमें कि they are discussing on, let's say, food security, right to food campaign. So I know, okay, this can be asked under GS3 food security, or it can be also a part of GS2 poverty and hunger, right? And then I will document the link, or I will prepare a short summary type of that editorial on my own. अभी ऐसा है कि ये चीज एक ग्रेजुअली डेवलप करता है। हो सकता है कि आपको पहले ही दिन में पता ना चले कि कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट में इम्पोर्टेंट है, बट most important is that you should keep doing this exercise. And if you are following them, I'm talking should means it's not that this is the only strategy. This is again a disclaimer. This was completely my view, right? And right, so what I used to do was I kept up with that, and the benefit that I got from here was I got a good idea of the main syllabus through this exercise, through this interlinking, right? Because see, this is not like a school exam, this is not like a university exam की कोई एक फिक्स सिलेबस है और आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, पढ़ के पास हो गए, ऐसा तो नहीं है। मतलब इसमें एक आपका एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक यू हैव टू हैव एन इनसाइट ऑन एवरी टॉपिक, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू इंटरकनेक्ट, you need to interlink in between the topics. So this daily exercise will help you. Now problem is that when I joined office after July, that time this exercise would not be possible for me to do on a daily basis. So that time what I did was I shifted this entire strategy on a weekly basis. कि मान लीजिए मैं अगर पूरी दिन भर ना भी होता था तो अगर थर्सडे, मान लीजिए वीक के मिडिल एक डे थर्सडे को पकड़ के मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे का न्यूज़पेपर खत्म करती थी और ऐसे लिंक कर लेती थी, फिर संडे को करती थी। लेकिन आई ट्राइड नॉट टू कीप अ बैकलॉग ऑफ मोर देन 7 days as far as newspaper reading and current affair linking is concerned. And along with the current affair linking from newspaper, this some website, I used to revise them also from time to time. And one more important thing is that there are some topics in your GS syllabus which will develop its base only from the current affairs. For example, the international relations part. तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने ये मई 2018 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया, फिर जब मैं सितंबर की एंड तक पहुंची फिर मैंने देखा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फिर आईआर पार्ट रिवाइज करने में मुझे और कोई एक्सटर्नल सोर्स
तो फिर कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस अपने इन जो वर्ड में जो से उन्हीं को रिवाइज किया। ठीक है। और एक बात है करंट अफेयर्स में जो परेशानी हुआ था मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि इनिशियली जब कुछ पता नहीं होता तब, जैसे मान लीजिए अगर कोई आरटीआई के ऊपर कोई एक आ गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में आरटीआई का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है उस एडिटोरियल में। तो इनिशियल डेज में आपको बहुत टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में, एंड दैट टाइम it's important that we be a bit dedicated on that because it will take time. Okay, like let's say I'm reading an editorial on RTI and I don't have any idea of the evolution of RTI. So थोड़ा तो बैकग्राउंड रिसर्च करना ही पड़ेगा ना विकिपीडिया से, या फिर आप RTI फॉर यूपीएससी, बस इसी टैगलाइन से आप सर्च कर दो, आप रेलिवेंट वेबसाइट्स में जाके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आप उसको भी नोट कर लो और उसको समझो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन शेयर माई स्ट्रेटेजी, जैसे मैं मई 2018 में ही एक आया था कि ट्रम्प ने कुछ जेसीपीओए को छोड़ दिया ईरान, तो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट का शुरू हो गया वहां से। लेकिन ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, व्हाट इज द म्यूचुअली, है ना, एक मैड डॉक्ट्रिन है, फिर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा होगा कि आप एकदम जाल में फंसते ही जाओगे, आपको लगेगा कि अरे करंट अफेयर करने में इतना टाइम लग रहा है तो स्टैटिक कब करना। So this is where your maturity comes in. This is where the balance in your preparation comes in. Okay. And these are the phases where you will feel like that I am not in the right path and what to do, but do not get demotivated. These phases happens to everybody. मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है। तो फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी किया था कि मैं करंट अफेयर ना रात के टाइम पे करती थी, क्योंकि ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा लिमिट हो जाए, 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम दे के खत्म करो उसको, और फिर संडे को उसको रिविजन करो। तो आप भी अपने हिसाब से आपके जो लाइफ में जो भी कंस्ट्रेंट्स है उसके हिसाब से ऐसे कर सकते हो। ठीक है। बट पढ़ो, मतलब ऐसा मत करना कि करंट अफेयर पूरा ही रिवीजन पीडीएफ के भरोसे छोड़ दिया। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी पर्सनली, बिकॉज आई फील दैट न्यूज़पेपर रीडिंग स्टिल इट्स रेलिवेंट, राइट। ठीक है। तो अगर हम अभी फेज 2 के बाद हम फेज 3 में आते हैं, नाउ दिस एंटायर जो फेज है आप समझ सकते हो कि दिस इज ऑल प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड फेज। मतलब इसमें हम ये इसमें ज्यादा नहीं फोकस किया मैंने कि ये whether I'm writing prelims or I'm writing mains. No, I'm taking it as a comprehensive block, subject wise block. So in the phase 3 where I talk of phase 3 as something which is called structuring the foundation. तो इसमें मेरा मेन जो मकसद था वो यही था कि जो भी मैंने पढ़ा सितंबर तक उसको रिवाइज करो। एक तो सबसे पहले रिवीजन 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 बार बार। और देखिए रिवीजन का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको बार बार रिवाइज करने से भी नहीं होता, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एक बार 2 बार पढ़ने से ही हो जाती है, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने हर एक टॉपिक को 3 बार या 4 बार, ऐसा नहीं है, मुझे सच में याद नहीं कि इसको मैंने कितनी बार रिवाइज किया। लेकिन फॉर्मूला ये है कि तब तक करो जब तक कि ना वो दिमाग में बैठ जाए, ये चीज याद है। तो इसमें मैंने रिवीजन तो जरूर की, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स डाले ताकि मेरी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी और कॉम्प्रिहेंसिव डाली, क्योंकि आप खुद ही सोचिए सिलेबस कुछ बहुत सालों से रिवाइज नहीं हुआ है। जो लोग 2021 के देंगे, राइट, 2020 या फिर 21 के देंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो करना ही पड़ेगा ना। कोई ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने सिर्फ बेसिक्स पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ के मेरा रैंक अच्छा आ गया, ये बोलना मिसगाइड करना होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया इस फेज में, जैसे मोनाल सर की वेबसाइट में ना बहुत सारे छोटी छोटी एकदम खजाने छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल उनके इंडस्ट्रियल लोकेशन के टॉपिक, मैंने उनको पढ़ा इस पेज में। इंडस्ट्रियल लोकेशन के साथ जब मैं इंडस्ट्रियल लोकेशन कर रही थी, मैंने क्या किया कि जो जीसी लियोन की जो बुक आती है ज्योग्राफी में, वो मैंने पहले पेज में नहीं किया था। तो मैंने जीसी लियोन की जो पार्ट 2 वाली बुक है ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो वाला मुझे आई फाउंड इट वेरी रिलेटेड एंड वेरी रेलिवेंट टू Munal sir's industrial location lectures, and I combined the two sources and made my notes. ताकि मान लीजिए ये लंबरिंग की कहाँ, लंबरिंग प्रोफेशन कहाँ डेवलप होती है, फिर जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और बिलीव मी ऐसा एक क्वेश्चन एग्जैक्टली मेंस में भी आया था और मैंने उसी नोट से उसको मैनेज किया। ठीक है। तो जीसी लियोन की पार्ट 2 और मुनाल सर की इंडस्ट्रियल लोकेशन, फिर जीसी लियोन की जो पार्ट 1 बुक है, वहां जहाँ पे आपका फिजिकल ज्योग्राफी रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम्स है। मैंने बस उस डायग्राम से उस बुक को रिवाइज किया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हिस्ट्री में तो मैंने पहले सिर्फ एनसीईआरटीज और उसके ऊपर फोकस किया और मेरा खुद के पास नोट्स था। अभी मैंने नितिन सिंघानिया को भी उठाया धीरे धीरे और उसको सिलेक्टिवली कवर किया मेरे नोट्स के साथ, और उसमें मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए, लेकिन नितिन सिंघानिया का पैरेलली मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया। व्हाइल आई वाज रिवाइजिंग माय नोट्स आई लुक्ड इनटू द पैरेलल चैप्टर्स फ्रॉम नितिन सिंघानिया, ताकि चीजें अलग ना लगे। फिर उसके बाद जैसे और एक अच्छी सोर्स, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस का जो पार्ट होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की भी तो थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत की एक गवर्नेंस बुक आती है,
वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट मुझे तो अच्छा लगा वो बुक से। मैंने आई वांट टू मेंशन इट, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस बुक आती है। फिर उसके बाद एक एआरसी रिपोर्ट तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना के अपने बुक में, अपने कॉपी में लिखा। और आप विल बी एक्साइटेड टू नो दैट एआरसी रिपोर्ट में जो चीज है, आप लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की बुक को पैरेलली करेंगे ना, तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स आर गिवन। Then Niti Aayog's 3 year report, that also I did and I made short notes on it. For example, Niti Aayog 3 year report वो भी है comprehensive, मतलब ये मृणाल सर की जो courses थे economy में 6 pillar approach, नीति आयोग की 3 year जो report था ना, वो भी उसी pillar approach में ही जाता था। तो when I used to revise Mrinal sir's notes, I used to take an important part from the Niti Aayog 3 year report also. फिर उसके बाद जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इससे पहले से स्पेक्ट्रम और प्रतीक सर के कोर्सेज किए थे। अभी मैंने शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम क्लासी टू पार्टीशन, उस बुक को भी थोड़ा सा पढ़ा while I was revising the previous thing only. Okay, round by round I was revising and also looking into this. Now I found this book very interesting. I mean, not only for UPSC aspirants, but ये जो शेखर बंदोपाध्याय उनकी लिखने का तरीका इतना शानदार है, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। And I just underlined it important from the novels. ओके, और ये भी एक मजेदार चीज है कि इस बार मेंस में एक क्वेश्चन आया था गांधी जी के ऊपर कि मेनी वॉइसेस ऑफ द नेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो वो शेखर बंदोपाध्याय की एक बुक में एक चैप्टर ही है उसके ऊपर, मेनी वॉइसेस ऑफ द नेशन। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैंने जो वो पढ़ा था, दो मैंने उस बुक को कभी रिवाइज नहीं किया एग्जैक्टली मेन से पहले, बट कहीं ना कहीं वो अपनी सबकॉन्शियस दिमाग में स्टोर हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की जो अशोक कुमार मैग्रो हिल की बुक आती है, वो मैंने किया। उसमें भी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं, बस अंडरलाइनिंग। वो एक बहुत ही पतला सा बुक है और बहुत फास्ट कवर हो जाएगा। फाइनली हम आते हैं एथिक्स में। तो एथिक्स के लिए इस ब्लॉक में, इस फेज में मैंने क्या किया, मतलब बिफोर प्रीलिम्स ये जो, अच्छा ये जो, सॉरी मैं बताना भूल गई कि ये जो फेज 3 था, फेज 2 हमारा मेरा मई टू सितंबर 2018 में था। ये फेज मेरा अक्टूबर टू फरवरी 2018 था। ये जो रिवीजन और एक्स्ट्रा एड ऑन वाली फेज, दिस वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी 2018। So around the fag end of January February I got little bit time to do ethics. तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, मैंने बस लेक्सिकॉन से इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स है, डेफिनेशन से, उसको नोट डाउन किया और थोड़ा बहुत अपना नोट्स बनाया और बाकी छोड़ दिया मतलब। लेकिन एथिक्स के लिए ना इम्पोर्टेंट ये है कि आई ऑलरेडी हैड गॉन थ्रू द सिलेबस। रिमेंबर आई हैड गॉन थ्रू द सिलेबस in the month of around February, I mean March to April. Before studying for the exam, I studied the exam nicely. तो इसीलिए मुझे पता था कि एथिक्स के ऊपर क्या क्या थोड़ा आ सकता है। तो whenever I used to look into, for example, अगर I'm looking into modern history, वहाँ पे अगर मैं ये पढ़ रही हूँ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैसे कैसे atrocities किए, तो I also looked into it from an ethical angle. Nobody had written them in the book that see this will be asked in GS score, but आप उसको थोड़ी सी एथिकल एंगल से देख सकते हो। सिमिलरली जब मैं करंट अफेयर्स करती थी, तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा कुछ आ गया विच इज रिलेटेड टू एथिक्स, तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन। ओके, तो आप भी इसीलिए आप पहले सिलेबस को पढ़ के अगर एग्जाम में आएंगे ना मैदान में, आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट। So this was overall my journey till February 2018. That is the combined mode of preparation. I hope you can understand the phase-wise gradation of my strategy. अच्छा, अभी मैंने अपना स्ट्रैटेजी बताया, इसका मतलब ये नहीं कि इट वाज पिच परफेक्ट और एकदम सही, मतलब जितना एंथुसियास्टिकली मैं आपको बता रही हूँ उतना एनर्जेटिकली वो हुआ नहीं था। इसके बीच में भी बहुत सारे अप डाउन आए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ कोई गाइडेंस नहीं है, कोई वो चीज नहीं है, ऐसा हुआ था। Okay, लेकिन that happens to everybody, that may happen, like, and that is a part of the journey. Okay, those things are a part of. Now it has been done and completed. That's why I'm sharing with you. But it may not. It was not this goody goody when I was actually executing the plan. But you know the main thing is that try focus on executing. If you spend too much time only on planning, ऐसा ना हो। मतलब आप execution के ऊपर भी ध्यान देना, वो important है। Not on कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से प्लान तो कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन, वो मेरे साथ भी कभी कभी होता है। सो टेक केयर। Okay. Now let's enter into prelims specific preparation. That is from around March 2019 to March 2019. So I told you the phases from May to September 2018, from October to February 2019. Now from March to June 2019, the prelim specific. इसमें भी मैंने अपने ब्लॉग में लिख दिया है। तो इस जो प्रीलिम स्पेसिफिक फेज होता है उसमें आपका दो पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ प्रिपरेशन यूजुअली चलता है। इन माय केस इट वाज टू स्ट्रैंड। वन वाज द रिवीजन पार्ट and revision completely from a prelims point of view, and another one was the everybody knows the test series and the mental alertness part, because see prelims not only tests your knowledge, it also tests your mental alertness and decision making ability, right? तो जैसे मान लीजिए मैं अगर रिवाइज कर रही हूँ फ्रॉम अ कम्प्लीटली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आई हैव स्टडीड लेट्स से ज्योग्राफी, सो मेनी थिंग्स,
But when I revise it from a prelims point of view, I actually have to take a map of India and I have to point out the rivers and tributaries, or because UPSC asks that, I don't know from where do they get so many rivers names and all. Every हर साल आता है कोई ना कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, इनका नेम्स, लोकेशन, फ्लोरा फौना कुछ ही लेते हैं. तो ये सब मेंस के लिए तो हम करते नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमें करना पड़ेगा. सिमिलरली जब हम पॉलिटी करते हैं तो मेंस के लिए एक बर्ड्स आई व्यू रखते हैं, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए हमको एकदम सेंटेंस ओरिएंटेशन भी देखना होता है कि सीजेआई पहले प्रेसिडेंट को कंसल्ट करता है या प्रेसिडेंट पहले सीजेआई को कंसल्ट करता है. तो ये एकदम लीनियर स्टडी में नहीं आता. आप जब टेस्ट पेपर देते हो, जब फुल लेंथ टेस्ट देते हो, मतलब उसी से ये मतलब दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स यू अवेयर कि अच्छा मेरा प्रिपरेशन है. फिर उसके बाद आप जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे, जैसे मैंने काउंट तो नहीं किया था क्योंकि आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आई यूज्ड टू गिव टेस्ट आफ्टर लंच, मतलब लंच के बाद मैं ऑनलाइन टेस्ट देती थी. I purchased the Insight that prelims test series, but I won't say it was very useful. Rather, I found many free initiatives more useful than any paid ones. For example, Insight 75-day revision plan was important. Then IS बाबा का 60-day plan. फिर उसके बाद जैसे IS पार्लियामेंट में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ पीडीएफ्स है जो मैंने रेफर की थी प्रीलिम से पहले. फिर उसके बाद विजन आईएएस के कुछ टेस्ट थे. विजन आईएएस का अभ्यास एक टेस्ट था जो मैंने, वो 3 टेस्ट होते थे, 3 टेस्ट हुआ था उसमें, मतलब ऑफलाइन टेस्ट था ताकि वो, क्योंकि 1 साल से मैं जॉब ही कर रही थी तो मेरा तो मतलब कुछ तो ऐसा हो ताकि मुझे थोड़ा कनेक्टेड फील हो एग्जाम से, कि वो जाके देने का वो जो फीलिंग है, इसलिए मैंने 3 ऑफलाइन टेस्ट दिया था फिलिंग से पहले, राइट. फिर तो मैं जब अपनी फुल अब प्रीलिम्स में ना ये बात है कि वो आपको वो मैजिकल पॉइंट कभी भी नहीं आता जब आपको ये लगे कि अच्छा चलो मैंने अपनी सिलेबस खत्म कर लिया है और मैं आज से टेस्ट देना स्टार्ट करूंगी, ऐसा पॉइंट कभी नहीं आता. So better that from March only, I mean 2-3 months before prelims only, you start giving the full length test. और आप उसमें अपने आप को चेक कीजिए. उसमें आपके 2 तरीके की आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. एक है ऑन द नॉलेज फ्रंट, आई मीन फ्रॉम द टेस्ट आपको कुछ नया चीजें पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ चीजें होंगे जो आपको हिस्ट्री में मान लीजिए पहले नहीं पता, लेकिन आपको अभी पता चलेगा फ्रॉम द सोल्यूशंस ऑफ द टेस्ट. So whatever knowledge you get, note that down on a separate copy or maybe add it to lecture wherever you have made notes or anything. That depends on you. जो सेकंड पार्ट है वो आपका मेंटल अलर्टनेस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी ब्लॉग में कुछ हैक्स बताया है कि प्रीलिम्स में कैसे आपको मेंटली अलर्ट रहना है. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपने बस क्वेश्चन को आपने देखा, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता तो आपने छोड़ दिया, ऐसा टाइप की एटीट्यूड नहीं चलेगा. यू हैव टू फाइट फॉर इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि इन प्रीलिम्स हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि ये गुप्ता एम्पायर में कुछ एक टैक्सेशन था, वो दैट टैक्सेशन अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें लिखा था कि दिस वाज एप्लीकेबल टू द एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द फैमिली. अनदर ऑप्शन था कि दिस वाज एप्लीकेबल टू दिस वाज अ वीकली वेज सिस्टम. तो अभी देखो मुझे डायरेक्टली आंसर नहीं पता था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें यहाँ पे तो ये आएगा कि मतलब डायरेक्टली एंशियंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वहां पे उतना डॉक्यूमेंटेशन क्या पॉसिबल है कि कोई बोल देगा कि परिवार के बड़े बेटे को ये जाता था या फिर ये वीकली वेज होता था. तो उस हिसाब से मैंने 2 ऑप्शंस निकाल दिए और फाइनली जो बचा है वही एक सही आंसर था. ठीक है, तो फिर आप भी एक प्रीलिम्स जब करोगे तब आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना लेना. जैसे फर्स्ट राउंड में आप उनको मार्क कर लेना जिसके बारे में आप 100% श्योर हो. सेकेंड राउंड में आप उसमें करो जिसमें आपका थोड़ा सा आधा आधा फीलिंग होगी, 50-50 हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, फाइट कीजिए. और लास्ट में आप उनको कीजिए जिसपे आप पूरी ही तरीके से एकदम गट सेंस से आंसर. तो ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही टेक्निक काम करे, लेकिन आप खुद का टेक्निक जरूर बनाइए. और प्रीलिम्स में ऐसे आप रिवीजन, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन 2 ही पार्ट है, रिवीजन और टेस्ट. और टेस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट कि टेस्ट से सीखो, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट दे दिया छोड़ दिया 50 टेस्ट दे के चले गए, नहीं. टेस्ट से सीखो, नॉलेज में भी सीखो और अपनी कॉमन सेंस एबिलिटी में भी उसको भी टेस्ट करो. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट प्रीलिम्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज व्हिच इज द मेंस, राइट. तो अभी देखिए मेरी जो प्रिपरेशन है वो आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ माय प्रिपरेशन. तो मैंने प्रीलिम से पहले उस हिसाब से आंसर राइटिंग कभी की नहीं थी. मैंने जनवरी फरवरी में व्हेन आई वाज इन दैट फेज 3 फ्रॉम दैट अक्टूबर टू फरवरी 2018 वाला फेज, along when I was revising and adding little add-ons to my preparation, I tried writing 1 or 2 previous year questions, right, but I wrote such so bogus answers that I left it and I said that चलो अभी prelims में focus करते हैं क्योंकि आंसर राइटिंग तो इतना खराब है कि अगर मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो शायद prelims ही बिगड़ जाए, राइट.
तो अभी लेकिन मैंने टॉपर स्ट्रैटेजी से मतलब ये वीडियोस से मुझे ये पता चल गया था कि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी चीज है। तो ये भी एक मन के अंदर एक भय जैसा था कि आंसर राइटिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि चलो, मैं उस टाइम पे भी मैं जॉब में थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं जॉब से आके शाम को ऐसे 7 बजे के बाद बैठती हूँ और 7-8 आंसर खत्म करती हूँ। लेकिन ये चीज मैंने करना शुरू किया, ये इनसाइड सिक्योर से, आईएएस बाबा टीएलपी प्रोग्राम से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आई स्टार्टेड राइटिंग। बट हियर आल्सो दिस मेथड नेवर सूटेड मी। आई मीन मुझे लगा कि मैं अगर रैंडम दिन में अगर 5-6 आंसर्स लिखूं, वो भी रैंडम सब्जेक्ट से, तो हाउ विल आई नो कि वेदर आई एम इम्प्रूविंग इट और नॉट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मतलब मैंने आज एक आंसर लिखा, तो 1 महीने बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उस टाइम पे कैसे आंसर लिखा था और मैंने इम्प्रूव किया कि नहीं, राइट। और चेक करने के लिए तो कोई था भी नहीं वैसे भी। तो फिर मुझे ये जो रैंडम डेली आंसर राइटिंग का चीज है, ये मेरे लिए सुटेबल उस टाइम पे नहीं था। तो मैंने फालतू में 2 वीक्स वेस्ट किया इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। और मैंने सोचा कि चलो अभी खुद का ही कुछ करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट सूटिंग मी। तो मैंने क्या किया, आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दिस इज एक्चुअली, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हम मानते नहीं है। So please, I advise you that take help of this. This is a freely available resource. Okay, take maximum benefit of this. तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्लॉक वाइज एनालाइज किया। जैसे मतलब जब मैंने प्रीलिम्स से पहले मैंने पढ़ा था, तो एक प्रीलिम्स में कंबाइंड प्रिपरेशन हुआ था। जैसे मैं जब पॉलिटी पढ़ रही थी, तो आई वाज स्टडिंग बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, नाउ माय ओनली फोकस शुड बी ऑन द जीएस पेपर्स। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे मुझे इन जीएस पेपर्स में एक पैटर्न दिखा। दैट केम ग्रेजुअली, नॉट इट वाज नॉट अ वन डे अफेयर, बट since I'm sharing my strategy with you, I would like to tell you how I saw the pattern. You may see it in a different way, that is absolutely fine. तो हाउ आई सॉ वाज कि मान लीजिए ब्लॉक, अगर हम एक ब्लॉक की बात, फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक मेरा था जीएस 1 का जो 1/3 पोर्शन था, विच वाज कनेक्टेड विद एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, द एंटायर हिस्ट्री का। ओके, तो वो एक ब्लॉक था, दिस वाज द शॉर्टेस्ट ब्लॉक। आई मीन फ्रॉम द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन, on the basis of number of questions it was the shortest, but on syllabus wise it was very wide. तो आप समझ सकते हो कि इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी कम है, कि सिलेबस है इतना ज्यादा लेकिन क्वेश्चंस आएंगे इतने कम। तो मैंने उसको साइडलाइन किया इनिशियली। नेक्स्ट आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक। दिस ब्लॉक मेनली कंसिस्टेड ऑफ द एंटायर जीएस2 एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब पूरा जीएस2 डीलिंग विद दोस टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल जुडिशरी, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, राइट। फिर उसके बाद जैसे आपका वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पॉवर्टी, हंगर, वल्नरेबल सेक्शंस, ओके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, वो सब, राइट। और उसके साथ हमारा जीएस 1 का जो सोसाइटी का पार्ट है, वो भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि सोसाइटी में भी आप क्या करते हो, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, वुमेन रिलेटेड स्कीम्स, SC ST रिलेटेड स्कीम, जो कि आप इजीली जीएस2 में वल्नरेबल सेक्शंस के साथ मैप कर सकते हो। तो मैंने इसका एक मैप बनाया, आई मीन मैप इन द सेंस मेंटल मैप बनाया। और मैंने क्या किया कि आईएएस बाबा की जो टीएलपी वेबसाइट है, ठीक है, और कुछ मतलब मोस्टली आईएएस बाबा की टीएलपी वेबसाइट, और कुछ इनसाइड सिक्योर के जो क्वेश्चंस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुनाल सर भी अपने वेबसाइट में इन्होंने ऐसे ब्लॉक वाइज कुछ कुछ टॉपिक्स रखे हैं। तो मैंने ऐसे ब्लॉक वाइज इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उसके आंसर्स मैंने लिखने की कोशिश की। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला कि मैं खराब लिख रही हूँ या फिर अच्छा लिख रही हूँ? एक तो एक गट सेंस वाली फीलिंग आती है कि आपको खुद पता चल जाता है कि आप बहुत बेकार के आंसर लिख रहे हो या फिर दूसरी। और दूसरी बात, आप मोनाल सर की वेबसाइट में भी अगर जाएंगे तो वहां पे भी उन्होंने कुछ मॉडल आंसर दिए हैं। या फिर आप जो विजन आईएएस के आजकल वो होते हैं कि वो टॉपर्स की, प्रीवियस ईयर टॉपर्स की आंसर शीट्स भी अपलोड कर देते हैं, तो आप उनको जरूर देखें कि दूसरों के आंसर देखने में कोई गलती नहीं है। मैंने भी देखा था, मुझे लगा कि चलो मैं जो लिख रही हूँ शायद वो इनके जैसा अच्छा नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपर्स है वो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें लिख रहे हैं, बहुत ही शानदार, ऐसा नहीं है। मुझे भी लगा कि उनके पास भी जो टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास है उनके पास भी था, और उन्होंने भी वैसे ही लिखा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला वो सब देख के। तो फिर मैंने ऐसे ही करके, ये एक ब्लॉक था। दूसरा ब्लॉक ये था कि पूरा इकोनॉमी, मतलब जीएस 3 एवरीथिंग एक्सेप्ट इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, एंड जीएस 1 ज्योग्राफी पार्ट। जो तो इसमें ना बहुत इंटर रिलेटेड चीजें लाइक एग्रीकल्चर, साइंस, टेक, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, इसका एक ब्लॉक। फिर और एक ब्लॉक था जैसे इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, जीएस2 और जीएस3 के कुछ पार्ट। ये भी थोड़ा सा सिमेंटिकली इंटर रिलेटेड चीजें हैं। और फिर एक ब्लॉक था अपने एथिक्स के लिए। तो ऐसे 4-5 ब्लॉक्स में मैंने सिलेबस को डिवाइड किया, और 10 दिन के लिए मैंने हर एक ब्लॉक को टाइम दिया, वो भी आइटरेटिवली, राइट। और फिर मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे,
कुछ आंसर्स लिखने की कोशिश की, मैंने सीखा कि कैसे आंसर्स लिखते हैं। तो अभी ये तो यही था मेरा आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी। अब इसमें मुझे और एक चीज बहुत सताती थी कि मैंने कोई टेस्ट सीरीज क्यों नहीं ज्वाइन किया। ये टॉपर्स हर साल बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए मेंस के लिए। मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे बहुत सताती थी इस बात को, मैं बहुत डरी हुई भी थी कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आई एम नॉट डूइंग द कन्वेंशनल थिंग्स। बट यू नो द वे लाइक फ्रॉम वेयर आई गॉट कॉन्फिडेंस वाज दैट आई एनीवे डिड नॉट हैव मेनी ऑप्शंस, right? I could have just left it, okay, or I could have gone with this answer. I mean, conventional topics and conventional ways, taking a test series and doing daily answer writing, which I knew internally. मन से मुझे पता था कि वो काम नहीं करने वाला, तो मैंने अपनी मन की बात सुना और थैंकफुली मुझे मेंस से बस 2 महीने पहले ऑफिस से अनपेड लीव मिल गया। दैट वाज अ ब्लेसिंग टू मी कि 2 महीने मुझे अनपेड लीव मिला और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। मतलब स्पेशली ऑप्शनल को थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल को मैंने उस 2 महीने में कवर करने की कोशिश की। राइट, तो इलेक्ट्रिकल अभी इस फेज में ऐसा था कि ऑप्शनल में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारा फोकस किया। ओके, और जितना भी मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज किया, और जो थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी, कुछ कुछ सिलेबस भी बाकी था मेरा प्रीलिम्स से पहले, 80% सिलेबस कवर हुआ था, 20% बाकी था, उसको भी मैंने खत्म किया इसी 2 महीने में इलेक्ट्रिकल से। और बाकी आंसर राइटिंग ऐसे ही ब्लॉक वाइज चलता रहा। मैं अगर थोड़ा सा आइडिया दूं कि मैं कैसे आंसर्स लिखती थी, वो भी आपको ब्लॉग से मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया है, मैंने मेरे कुछ सैंपल आंसर। तो मेरा आइडिया यही था कि इसमें भी एक मिथ चलती रहती है कि आंसर्स में बहुत सारे मैप्स दो, बहुत सारे डायग्राम्स दो। मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता था ज्यादा। आई मीन वो प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव जरूर करती है मैप्स और डायग्राम्स, लेकिन अगर कंटेंट ही नहीं है तो वो आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब तो कंटेंट के ऊपर, कंटेंट इज द किंग। ओके, मेरा आंसर यूजुअली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स। आई यूज्ड टू राइट इन पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स, और ऑलरेडी टाइम इतना कम है उसमें, अगर मतलब ऐसा तब कुछ कुछ चीजों में ऐसा था कि कोई एक मैप या डायग्राम आपके आंसर को बहुत वैल्यू ऐड करती है, तो इन दोस केसेस गिव दैट। बट इन रेस्ट ऑफ द केसेस यू कैन जस्ट राइट वॉट एवर यू नो। आई मीन ऑफकोर्स इन अ क्लियर एंड अ कोहेरेंट मैनर जो आपको प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो, राइट? बट डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ अननेसेसरीली ऑन दिस फैक्ट कि मैं डायग्राम नहीं दे रही हूँ या फिर मैं ऐसे नहीं दे रही हूँ, ऐसा कोई यूएसपी कोई रूल नहीं है। तो ये रहा मेरा आंसर राइटिंग मोरलेस मीन्स के लिए। ऑप्शनल का भी मैंने बता दिया। अब आते हैं एसे और एथिक्स का मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहा है। तो इसका भी मैं अपने ब्लॉग में लिखूंगी, अपडेट करूंगी। तो मैंने कोई ऐसे भी नहीं लिया था, इसमें भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं। टेस्ट सीरीज क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता था, सच बताऊँ तो टेस्ट सीरीज। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज मुझे लगा कि उतना टाइम कहाँ है कि मैं लिखूंगी, कोई चेक करेगा, फिर कॉल में फीडबैक देगा, या फिर सेंटर में जाके, उतना टाइम तो है ही नहीं। उससे अच्छा जितना हो पाए अपना बेस्ट दो, अगर नहीं हुआ तो अगले साल तो है ही दूसरा है। ऐसा ही टाइप की मेंटेलिटी थी उस टाइम पे। लेकिन फिर ऐसे के लिए मैंने क्या किया, मैं मुझे लगता है September 20 को हमारा एग्जाम था, और अगस्त फर्स्ट वीक तक मैं एकदम ब्लैंक थी ऐसे में, मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था उस टाइम पे। So then what I went through was again I read some of the previous year toppers ऐसे। कुछ पढ़ के अच्छा लगा, कुछ पढ़ के लगा कि मैं शायद इससे अच्छा कर सकती हूँ अगर मुझे लिखने का स्पेस मिले तो फिर उसके बाद मैंने मतलब वैसे भी मुझे थोड़ा लिखने का थोड़ा सा आइडिया था, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती, मतलब आई लव राइटिंग राइट फ्रॉम माई कॉलेज डेज ओनली। बट ऐसा नहीं था कि मैं यूपीएससी लेवल ऐसे लिख सकती हूँ, उसके लिए कॉन्टेंट चाहिए होता है। तो ऐसे के लिए भी मैंने कुछ कुछ चीजें मैं तैयार करके गई थी, लाइक कोट्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, मदर टेरेसा। फिर उसके बाद जैसे कुछ फिलोसोफर्स के कोट्स थे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैंने फाइनल एग्जाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे लिखा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उसको स्टार्ट करने का मैंने थोड़ा सा इनोवेटिवली स्टार्ट किया। मैंने एक कोट उसमें पढ़ा था कि एक फिलोसोफर है जिनका नाम है नीत्शे। तो नीत्शे ने एक बार ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सुपरमैन, ही यूज्ड टू कॉल इट द उबरमैन। So I started my AI essay with that kind of philosophy. Is AI leading us to that kind of a Superman world? तो ये थोड़ा सा इनोवेटिव लगता है। ये थोड़ा आपके ऊपर है, किसी कोचिंग सेंटर के पीडीएफ में ये नहीं मिलेगा, ये आप खुद से करोगे, और ये एग्जाम से 1 महीने पहले ही कर लेना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप स्कूल ऑफ लाइफ के वीडियोस देखें। स्कूल ऑफ लाइफ के वीडियोस में भी, यूट्यूब वीडियोस में भी कुछ कुछ फिलोसोफर्स के बारे में अच्छी अच्छी चीजें, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था इन सब फिलोसोफर्स के बारे में जानने, तो वहां से मैंने कुछ कोर्स लिया। राइट, एथिक्स में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी। एथिक्स क्योंकि इससे पहले मैंने एथिक्स से बस टर्म्स वो पढ़ लिया था लेक्सिकॉन से। अभी मैंने मुनाल सर की वेबसाइट में कवन सर एक है, कवन सर, उन्होंने एथिक्स का बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है सिलेबस को।
सिलेबस के वर्ड्स को मैंने उनकी वेबसाइट को रेफर किया, मतलब ऑफिस जाते जाते शटल में मैं उसको पढ़ लेती थी, क्योंकि वीडियो तो था नहीं, तो टेक्स्ट पढ़ने में इजी होता है, तो वही मैंने पढ़ लिया, अलग से नोट नहीं बनाया, बस समझ लिया। और बस एथिक्स में थोड़ा सा आंसर राइटिंग किया मैंने, 3 फुल लेंथ टेस्ट दिए एथिक्स में। और एथिक्स में मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि फर्स्ट आई यूज टू अटेंड द नॉर्मल क्वेश्चंस एंड देन आई यूज टू गो फॉर द केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें आप हो सकता है कि आप सोल्यूशन के ऊपर सोल्यूशन दे ही रहे हो, तो पेपर खत्म नहीं होगा अगर आप लिमिट ना करोगे, तो इसलिए फर्स्ट कंप्लीट द कन्वेंशनल क्वेश्चंस एंड देन गो टू द सिचुएशन। तो कन्वेंशनल क्वेश्चंस तो ठीक है, आप पढ़ लोगे जहां से भी। और सी एथिक्स इज अ पेपर वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इनोवेट, वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू से योर आई मीन योर फीलिंग्स। और एथिक्स कोई हवा से नहीं बनती, वो भी आपको जीएस 1 2 3 से ही रेफरेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर आप किसी डिस्क्रिशन करप्शन इन सब की बातें कर रहे हो तो एथिक्स में, तो दैट यू हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ स्टडीड इन GS2 फ्रॉम ARC रिपोर्ट। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक मान लीजिए, मैं जब कर रही थी उस टाइम पे एक ऐसा न्यूज आया था कि किसी कोई कंपनी ने किसी फार्मर को ऐसे वो कर दिया क्योंकि उन्होंने एक पेटेंट लॉ को डिफाई किया था। तो इसका एक एथिकल इशू, हर एक चीज में अगर आप शुरू से एक एथिकल इशू देखोगे तो एथिक्स पेपर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सप्रेस योर आइडियाज ऑन इश्यूज। सिमिलरली सिचुएशन रिएक्शन में भी मैंने क्या किया था, मतलब इसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, मतलब आप एथिक्स लिखना मतलब हरिश्चंद्र बनना नहीं है। ठीक है, कि एकदम जो भी मन मतलब जो कभी हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, उसको लिखने में क्या फायदा, आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो, आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। उस आइडिया को आप दिमाग में रखिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रपोज कीजिए। उसमें मुझे अभी तक मार्क्स आए नहीं है तो आई कैन नॉट से दैट पे, और नाइदर मैंने कभी किसी से अपने पेपर्स को चेक किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें लिखोगे तो अच्छा लगेगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको देखते हो, राइट? दीज आर ऑल वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स। ओके, इट्स अ पर्सनलाइज्ड एंड अ सब्जेक्टिव पेपर। यही था मेरा ओवरऑल मेंस की जो स्ट्रैटेजी। तो मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने कोई पेड टेस्ट सीरीज की सहारा नहीं लिया, मैंने कोई आंसर फीडबैक देते हैं ये सब भी नहीं लिया। ऐसा नहीं था कि मतलब मैं लेना चाहती थी इनको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कुछ कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपका जो भी सिचुएशन है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर आप मतलब ज्यादा विचलित ना रहे कि अरे इसका वो है उसका वो है, अपने आप को बार बार किसी और से कंपेयर ना करें। ठीक है, मतलब मैं इन फेज से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस दैट डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, बिकॉज सबके ही लाइफ में कुछ ना कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सभी लोग अपने अपनी चीजों में उनको उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू फोकस, यू हैव टू एक्सेप्ट योर कॉन्स्टेंट्स। ओके, मेरे पास टाइम एक कॉन्स्टेंट था, वो एक कॉन्स्टेंट, मैं दूसरे शहर में थी, वो सब, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि चलो इसको छोड़ देते, मतलब सी पॉजिटिविटी ऑलवेज बूस्ट पॉजिटिविटी, राइट? आई मीन you should take it this way that see when I used to write the paper, all these दिमाग में ख्याल आते कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, एथिक्स में 120 मिलेगा कि 110 मिलेगा, ये सब सोच आता ही नहीं दिमाग में। बस क्वेश्चन है, पेपर है, पेन है, लिखो, खत्म करो पेपर, राइट? वन मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी दैट इन जीएस आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने ऐसे 2 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, जो कि मैंने वो दिल्ली जाके थोड़ा सा, मतलब मैं नोएडा में काम, आई वाज वर्किंग विद एडोबी इन नोएडा, so I one day I traveled to Delhi to buy some test papers, mock test papers from the shops, okay, in Karol Bagh, and then I brought them and I gave 2 full length tests before the actual mains exam. तो उसमें किसी में भी मैंने GS 1 2 3 4 दिया, 8 टेस्ट टोटल दिए, किसी में भी मेरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो मैं इतनी टेंस थी कि फाइनल एग्जाम में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो पता है जब एग्जाम में एंटर कर रही थी तो दिमाग में बस यही घूम रहा था कि खत्म करना है पेपर, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई स्कोर और नॉट। ठीक है, बस खत्म करना है ताकि मेरे वो सेटिस्फेक्शन दे। Okay, so now let's come to the final stage, which is interview. So interview, I did not do anything special. I just kept up with reading the newspaper. Okay, and because I was not sure, मुझे कोई idea नहीं था कि आंसर सही है कि गलत है, right? And I was also going through a difficult phase in life at that point because I was on the verge of changing my job. I wanted to change my job and I was thinking for some other backup option in my career. तो ये सब बहुत चीजें चल रहा था, लेकिन उसमें अचानक से इंटरव्यू कॉल आ गया। तो इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से नहीं किया, जो सब करते हैं डैप को एनालाइज करना अच्छे से, डैप से क्वेश्चंस निकालना अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, अबाउट योर लाइक योर हॉबीज एंड ऑल, सोच समझ के भरना उसको, वो करना। और मैंने 3 जगह से मॉक इंटरव्यू दिया है,
दृष्टि IAS, अन अकेडमी और चाणक्य IAS से, इन 3 जगह से मॉक इंटरव्यूज ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट का ही फ्री में ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तब वो मतलब आपके वीडियोस देते हैं, वो अच्छी बात है, सबको इंस्पिरेशन मिलती है उससे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मेरे पास बहुत सारे आजकल कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आपने उस कोचिंग से उस इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग लिया इसीलिए आपका वीडियो दिया है, तो आप भ्रमित मत होना इन सब चीजों से, ठीक है। मतलब डोंट गेट मिसगाइडेड, हम उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम बस मॉक देते हैं और उनके रिस्पेक्टिव पैनल मेंबर्स रहते हैं, 30 मिनट 30-40 मिनट का ही टाइम होता है, ऐसा नहीं कि हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से शुरू से जुड़े हुए हैं, राइट। That is the thing. But for interview, it's more of your personality. It's more of how you answer. Um, it's more of your confidence. And like my strategy, I don't know, marks is not yet come out, but my strategy was that मुझे जितना पता है मैं उतना बोलूंगी, ठीक है। मतलब बाइनरी चीज नहीं है कि पता है तो बोल दिया, नहीं पता है तो बिल्कुल ही ना बोल दिया, नहीं। जितना पता है, अगर 50% पता है तो 50% कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। वो कुछ जज नहीं करेंगे आपको कि अरे आप जुगाड़ू हो, आप इसलिए 50% बोलो, नहीं। मतलब हर एक आंसर में नो 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 बोलते मत रहना। मतलब ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस को देखते कि अरे ये तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर से बॉल आ रहा है, हम बैटिंग कर रहे हैं एक क्वेश्चन से, ऐसे मेंटेलिटी के साथ मत जाना, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। जितना पता है उसमें एक डिस्कशन, एक काइंड ऑफ ट्राई टू एंगेज योरसेल्फ इन अ डिस्कशन विद द बोर्ड। Okay, that will show that you are a very like you are interested in that conversation, right? You are not nervous and you want to discuss, you are very उत्सुक हो। इंटरव्यू के लिए इतना ही था, बस तो यही था मेरा ओवरऑल जर्नी। इंटरव्यू में मेरे साथ मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा इंटरव्यू काफी स्ट्रेसफुल था, ऐसा कुछ एक नॉर्मल ही इंटरव्यू था, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का इंटरव्यू था। तो फर्स्ट पैनल, द चेयरमैन ऑफ द पैनल, ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय एजुकेशन बैकग्राउंड, आई मीन व्हाई यूपीएससी आफ्टर IIT, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, right? This kind of thing. Then one panel member, he asked me a lot about current affairs. I mean, like for example, freedom of speech for civil service aspirants, civil servants. Do you think freedom of speech should be given? Then about model code of conduct in elections. Then about artificial intelligence. Then about Beti Bachao Beti Padhao. So he was asking such different questions so that ताकि एक के साथ एक कोई लिंक ना रहे। वो शायद यही टेस्ट करना चाहते थे कि आप मतलब डाइवर्स टॉपिक्स को एक साथ विजुअलाइज कर पाते हो कि नहीं। मतलब एक बार में आपसे पूछेंगे AI, फिर दूसरी बार में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आ जाएंगे। So it was that diverse, right? One of the panel. Another panelist, panel member, he asked me completely on electrical engineering. I mean, it was so detailed. Like I was feeling as if I was giving some engineering interview. ऐसा लग रहा था। मतलब exactly ये भी पूछे थे कि solar power factor का PLF क्या होता है। These things we usually like. So that type of detailed questions came. Then after that, another like she was a lady. There were two lady board members also. So she asked me about some questions that if you are posted in a situation question, that if you are posted in a district, what will you do for girls in the district who are of a child-bearing age, I mean adolescent girls. तो इसमें भी आप ना इंटरव्यू में अगर आप मतलब मेरा एडवाइस ये है कि आप बहुत जनरल बातें ना करो, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हो, आपके बातों में कुछ स्टेटिस्टिक वो होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यस मैम, ऐसे इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द वुमेन दे आर डायग्नोस्ड विद एनीमिया, तो ये एडोलेसेंट वुमेन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो एक स्टेटिस्टिक है, this statistics will prove that ठीक है, you are aware, I mean you are not talking from respect of a layman। ऐसे तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, तो फिर आप में और एक सिविल सर्वेंट मतलब एस्पिरेंट में वो डिफरेंस क्या है। So don't speak too much on layman, don't use jargon on the interview, but keep some statistics ready। I mean जो आप मेंस आंसर में लिखते हो वो आप इंटरव्यू में भी दे सकते हो, राइट? ताकि बहुत जनरलाइज ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपके साथ बहुत एकदम बातें कर रहे, ऐसे नहीं। मतलब इट शुड बी प्रोफेशनल एंड इट शुड लुक दैट यू हैव सम नॉलेज, सम गुड ग्राउंड बेस। तो वो आप कर सकते हो। जैसे तो फिर एक कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मुझे ये लगा कि मैंने उनसे ये पूछा था कि डू यू थिंक लाइक इन माय डैफ आई हैड अ स्कॉलरशिप, अ साइंस स्कॉलरशिप। सो she was saying that you are a science scholar, so tell me, is science important or religion is important? Which one of them is supreme? So I tried to go through a balanced way, but then she was asking, no, science is all about logic and religion is all about faith. So you have to choose among one. So these are actually provocations that they want to check the diversity in your personality. Like you are a science student, but let's say you absolutely give a very unbalanced kind of an answer. No, no, science is the absolute supreme. There is no place for religion. I mean, if you're saying this kind of thing, then they will say that
okay, like she's from a science background and there is no diversity in personality. So my answer to this was that ma'am, science and religion, they answer different questions in life. I mean, religion is a different question in our life. They give us a different direction, a different way of thoughts in our life, and science gives us a different way of thought. So why mix the two? And it is not necessary that they have to be antipolar. Okay, it's not necessary that there always has to be a comparison. Both can perfectly go. And why unnecessarily create, a wedge between them? So this kind of thing. Right? One more thing is that usually there's like the people, like the board members, they were very cordial, and very thankful that they were cordial, but they were not very reciprocative of whatever I was saying. Like if I used to go with a smile on my face after every answer, they did not reciprocate that. Like they were very serious enough, and like they were like looking at me in this way. It was not an uncomfortable situation, but many people say no that no, they warm you, like they give a very warm like reception to you. It's not that also. It's a very professional and a very perfect interview. You'll feel very good after coming out. You will not worry about the result. You'll feel that ठीक है, हो गया, इतनी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट के सामने अपनी बात बात को मैंने रखा है. इंटरव्यू स्टेज में मेरे साथ भी वही था कि मतलब 1 साल 1.5 साल तक एकदम चुपचाप खुद बैठ के मैंने प्रिपेयर किया, और फिर अचानक से मुझे मतलब बोलने का मौका तो मिला है, मतलब खुद को मैं कौन हूँ ये बोलने का मौका तो मिला है, तो इसका फायदा उठाना. रिजल्ट क्या है वो तो बाद में, लेकिन वहां तक अगर पहुंचे हो तो फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने बात को पेश करना, यही एडवाइस. तो जैसे मैंने आपसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी रखी है, मतलब मेरी जो जर्नी है, तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या थी जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले जो लर्निंग है कि यहाँ पे जो सारे ही एस्पिरेंट्स हैं उनके सबके ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप अगर मेरी बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं आईआईटी से हूँ, या फिर मैं एडोबी में जॉब करती थी, तो ये बहुत ही एक कलरफुल पिक्चर, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मतलब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का ज्यादा आइडिया होगा नहीं. एक तो वो बात है. दूसरी बात है कि हाँ, जॉब तो था लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट भी थे. लेकिन अगर टाइम कंस्ट्रेंट थे तो मेरे प्रायोरिटीज भी सही से सेट थे कि चलो टाइम कंस्ट्रेंट है तो इसलिए मैं जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले मैं उसी को पढ़ लूंगी. तो आप देखेंगे कि पूरी ही आपकी जो जर्नी है यूपीएससी में, दिस इज अल्टीमेटली लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो आजकल जैसे मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करना, ऐसे ऐसे टाइप की चीजों को कि चलो ये तो ये है तो इसका तो तय है, या फिर दिस पर्सन फैमिली फैमिली में इतने सारे आईएएस आईपीएस है तो इसका तो होना ही है. तो ऐसी टाइप की चीजों से आप बचिए, खुद को बचा के रखिए. राइट, जैसे आप मुझसे देख सकते हो तो मेरे आसपास फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जिससे मुझे डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिल सके. मेरे दोस्तों में भी कोई नहीं था. ठीक है, फिर मैंने किसी को बताया भी नहीं. सबसे अहम बात ये कि मैंने पूरी जर्नी में अपनी दोस्तों को बताया भी नहीं कि मैं ये कर रही हूँ. ठीक है, और फिर मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स तो डायरेक्ट रिजल्ट के दिन ही उनको पता चला कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये ड्रम बीटिंग करने का फायदा क्या कि मैं कुछ कर रही हूँ, सबको बता बता के आप क्या कर लोगे. यूपीएससी को तो फर्क नहीं पड़ता आपने किसी को बताया नहीं बताया, उसको तो यूपीएससी को तो बस प्रीलिम्स और मेंस में और इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस दिया, वो दैट इज व्हाट मैटर्स टू देम. सो इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज को बहुत अच्छे से सेट कर रखिए. ठीक है, मतलब आप ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करना कि दिस पर्सन इज फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दिस पर्सन इज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इसीलिए इसका हुआ, मेरा कभी नहीं होगा. आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया, सो आई वोंट बी एबल टू क्लियर यूपीएससी. आप बायसेस मत रखिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, खुद को ओपन रखिए कि हाँ, मतलब मैं ट्राई करके तो देखूं. मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया कि यूपीएससी करना है. बिकॉज देखिए, आजकल तो हम एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे तरह तरह की जॉब्स है. राइट, वी देर आर सो मेनी जॉब्स. इट्स नॉट दैट 1970s एरा यहाँ पे एक ही मात्र अच्छी बात है करने की. तो आपको फिर भी यूपीएससी क्यों करना है, ये जो क्यों है इसको बहुत स्ट्रांग रखिए. ये आपका पूरा 1 साल 1.5 साल 3 साल जितना भी टाइम लगे कि आपको ये वाई, इफ यू नो दिस वाई नाइसली ना, दिस दिस इज द ओनली वर्ड विच विल मोटिवेट यू. वन मोर थिंग इज दैट यू डोंट नीड टू सर्च फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन कि मेरे दोस्त मुझे, मेरे रिश्तेदार मुझे आके मोटिवेट कर दो. कोई नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला. मतलब मेरे मेरे साथ जो हुआ था, मैंने किसी दोस्त के साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये भरोसा ही नहीं था कि वो मेरे मतलब मेरी अंदर की जो डेडिकेशन है इस एग्जाम के ऊपर, मुझे लगा कि शायद वो कुछ मायने ही नहीं देंगे इसकी, तो मैं क्यों शेयर करूँ अपनी फैमिली मेंबर्स या फिर अपने दोस्त को. तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेटेड आप खुद हो. अपनी खुद के अंदर ही आप मोटिवेशन ढूंढो. वो क्यों, पहले तो क्यों करना चाहते हो उसको अच्छे से देखो, और सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, किसी भी एरिया में. नो द वाई फर्स्ट एंड बी योर ओन मोटिवेटर. ठीक है, ये चीज. और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे
जिससे आप बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हो। जैसे आपकी फैमिली की कुछ फाइनेंशियल कंडीशन हो, जैसे मेरे साथ था, जैसे मेरे लाइक माय मदर इज अ सिंगल पेरेंट बिकॉज आई लॉस्ट माय फादर इन 2011 राइट ड्यू टू हेल्थ इशू। तो वो एक कंस्ट्रेंट थी मेरी लाइफ में, राइट। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अभी किसी को बोल दूं कि चलो मेरे लाइफ में ये है तो मैं तो कर ही नहीं सकती, इसका तो इतना अच्छा बैकग्राउंड है, इसके तो इतने पेरेंट्स है जो इनको मोटिवेट करते हैं, मेरे तो है ही। So I cannot keep on saying these things. So you also, I always consider that जब मैं ऐसे YouTube में जब मैं टॉपर्स की वीडियो देखती थी, तब मुझे ऐसा लगता कि कोई ऐसा है जिसने फिफ्थ अटेम्प्ट तक भी दिया है एग्जाम। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि अरे मेरी तो मतलब my difficulties are nothing as compared to his. I mean, he has kept himself up motivated for 5 times, and I have just started. So what will demotivate me? I mean, just look at his life. So आप ऐसे टाइप की स्टोरी से इंस्पायर रहिए, सारी चीजों की पॉजिटिविटी को देखिए। ऐसे मत सोचना कि उन्होंने फिफ्थ अटेम्प्ट तक दिया है तो क्या, नहीं, फिफ्थ अटेम्प्ट तक देना बहुत बड़ी बात है, इसको मानिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ठीक है, कर दिया, कुछ स्ट्रैटेजी कुछ काम कर गया होगा, ठीक है, लेकिन जो लोग बार बार दे रहे हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो बार बार देते हैं वो कुछ शायद मतलब इधर उधर हुआ होगा, लेकिन उसके लिए भी एक अलग सी मोटिवेशन जरूरत है, जिसको मैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। वैसे टाइप के जो टॉपर्स है, एस्पिरेंट्स है, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट, मुझे मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट है उनके लिए। और बाकी आप देखिए, मतलब बहुत सारे सोर्सेज आपके सामने हैं, तो ठीक है, यूट्यूब में इतने सारे फ्री सोर्सेज है, वेबसाइट्स में है, इतना कुछ है, तो आप अपने दिमाग को ओपन रखिए और बी रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस एंड रेडी टू एक्सेप्ट। और एक लास्ट बात ये है कि दिस इज अ जर्नी ऑफ बैलेंस। लाइक इफ आई स्पीक एकेडमिकली, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी इशू उठा लीजिए, मान लीजिए आधार इशू, कोई बोलेगा आधार से एकदम इंडिया का प्रोग्रेस ही बदल जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं, इतना नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई मतलब आप जैसे बहुत सारी, ये आत्मनिर्भरता, कोई बोलता है आत्मनिर्भर भारत मतलब वापस जाना, कोई बोलते हैं नहीं, ये एक नया भारत का वो है। तो हर एक को आपको पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो आपकी प्रिपरेशन भी ऐसा ही है, कुछ सही गलत है ही नहीं इसमें, जो आप करोगे मन से करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, वही आपके लिए सही है, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। मतलब तो ऐसे टाइप की क्वेश्चन कि मैं जॉब छोड़ू, शुड आई लीव अ जॉब, शुड आई टेक कोचिंग, शुड आई स्टॉप वाचिंग टेलीविजन, शुड आई स्टॉप वाचिंग फेसबुक, इसका कोई एक जवाब होता ही नहीं है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, यू हैव टू फाइंड दैट मीडियम, दैट मिड पॉइंट, जो होता है ना बुद्धिज्म में एक मध्यम मार्ग का फिलोसफी, आपको उसी में अपनाना है और दिमाग को ओपन रखना है, और बस why you want to do this, make that stronger, and everything else will fall into place, right? So that, and my best wishes to all of you, finally, and yes, may you do very good things in life. Thank you.